Hello all my dear students of class 7th. This is Priyanka Arora in front of you, welcoming you all to Maths online class after your first term examination. Yes, so your first term examinations are over and here I am ready to give you the content for your second term examination. And for this, today we will be beginning with our new topic, and that is your chapter number 5, algebraic expressions. So without wasting any more time, let us begin with this new topic, and here I am giving you that which topics I will be covering in today's lecture. So let's begin with it. Yes students, so in this chapter I will tell you that what are the algebraic expressions, then how to find the terms of algebraic expression, how to find the factors of algebraic expression, how many types of algebraic expressions are there, what are the like and unlike terms, and how to find the coefficient of the terms. So these all topics I will be covering in today's lecture. So let us begin. First of all, algebraic expressions. So algebraic expressions are basically expressions which are having some numbers and variables. Variables means those terms which are not having the fixed value, and numbers means constant value which are having the fixed value. नंबर्स जो कांस्टेंट होते हैं उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो ये दोनों मिलाकर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलाकर जो एक्सप्रेशंस फ्रेम करते हैं उनको बोला जाता है algebraic expressions. Okay, so here I have written one algebraic expression where you can see students that some variables are there and constant value I have not written, so I can increase it by putting one constant value also, like I am putting here number 5. So this is the algebraic expression which is 16p square q minus 10xy plus 13n and 5. So where this 16p square q minus 10xy plus 13n, these three terms are having the variables with it. इन तीनों terms के साथ में variables हैं. आप देख सकते हो variables, as I said that variables means alphabet, and we denote the alphabets with small letters. We never denote the alphabet in algebraic expressions with capital letters. Okay, so these small letters are called as the variables, and variables can be from A to Z, Z, any letter. Okay, and the constant value means any number from 1 to endless counting. You can take any number as a constant value. Then the terms of algebraic expression. Now how to find the terms of algebraic expression? This is a algebraic expression. ये एक algebraic expression है. अगर इस algebraic expression के अंदर, like क्या है algebraic expression, 16p square q minus 10xy plus 13n plus 5, ये एक algebraic expression मैंने यहाँ पर ली है. अब अगर इस algebraic expression के अंदर हमें terms बतानी है कि terms क्या है इसके अंदर, so basically इस algebraic expression के अंदर total 4 terms है. आप terms कैसे find out करेंगे? ये है इसकी first term, this is the second term, this is the third term, and this is the fourth term. So this algebraic expression is having 4 terms, और इस terms को हम separate करके लिखते हैं इनके बीच में कॉमा लगाकर. सो ये कॉमा लगा के ये फर्स्ट टर्म हो गई. सेकेंड टर्म, अगर किसी भी टर्म के अंदर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो अगर आप उसको नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर टर्म के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन प्लेस करना इंपॉर्टेंट है. लाइक यहाँ पर माइनस 10xy, तो इस 10xy के साथ हम माइनस का साइन कंपल्सरीली पुट करेंगे. नेक्स्ट टर्म जो है वो है 13n. अब इस 13n के साथ में पॉजिटिव साइन है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी हियर टू पुट द पॉजिटिव साइन. हम पॉजिटिव साइन के बिना भी इस टर्म को डिनोट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज नंबर 5. सो this algebraic expression is having 4 terms. So this is all about terms of algebraic expression. Now let us talk about factors of each term. अब अगर इन सारे terms के
फैक्टर्स हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर सेपरेट करके इसको 16 इंटू पी इंटू पी इंटू q. So these are the factors of 16p square q. Why p is coming 2 times? Because p is having power 2. Power 2, that means that particular variable will come 2 times. Either you can write it by putting multiplication sign in between, or you can simply put a comma in between to write the factors of each term. So these are the factors of first term. Similarly, if we have to write the factor of second term, so it will be 10 comma x comma y. So these are the factors of second term, and the factors of third term will be 13 comma n, and the factor of last term will only constant 5. So like this we can find the factors of each term. Now coefficient of terms. Now what is coefficient? अगर हमें किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, लाइक अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, अगर फर्स्ट टर्म के अंदर कहा जा रहा है कि इस फर्स्ट टर्म के अंदर आप पी स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए, तो जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है उस वैल्यू को हम उस टर्म में से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर को कर देंगे डिलीट, और इसको डिलीट करने के बाद में जो बाकी की दो फैक्टर्स रहेंगे वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 16q. सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर। इसी तरीके से पी स्क्वायर का कोफिशिएंट ना पूछ के अगर पी का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता, फर्स्ट टर्म में से आप बताइए पी का कोफिशिएंट क्या है, सिंगल पी का पूछा है, स्क्वायर का नहीं। तो देखिए पी का कोफिशिएंट पूछा है ना, हमने जब इसके फैक्टर्स निकाले थे तो ये आए थे इसके फैक्टर्स। अब सिर्फ p का कोफिशिएंट पूछा है तो हम एक सिंगल p को डिलीट कर देंगे, उसके बाद में जो भी फैक्टर्स हैं वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो क्या बच गया 16pq, तो p का कोफिशिएंट हो जाएगा 16pq। इसी तरीके से अगर 16 का कोफिशिएंट पूछा जाए, फर्स्ट टर्म में से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 16 इन 16p स्क्वायर q, तो हम 16 को डिलीट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर q इज द कोफिशिएंट ऑफ 16। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वैल्यू का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है उस वैल्यू को आप डिलीट कर देंगे, और उसको डिलीट करने के बाद में जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वही आपका कोफिशिएंट होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं? सो मेनली 3 टाइप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारी एक्सरसाइज में भी कवर होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। Monomial are those type of algebraic expression which is having only one term, okay, in the expression. Binomial are those type of algebraic expression which have 2 terms in the expression, and trinomial are those kind of algebraic expression which has 3 terms in the algebraic expression. Okay, such kind of question will come in exercise. So when it will come, I will tell you that how to find it out. But you just remember the 3 types of algebraic expression, that is monomial, binomial and trinomial. The more about it we will discuss in exercise. Now the last topic which we will cover is like and unlike terms. You will also get to know that what are the like terms and what are the unlike terms of algebraic expression. वो algebraic expressions जिसके variable exactly same होते हैं वो कहलाती हैं like terms, और वो algebraic expressions जिसके variable totally different होते हैं तो वो कहलाती हैं unlike terms. So questions according to this like terms and unlike terms will also come in exercise 5.1. So we will discuss in detail in the exercise. So here I have given you the topics which I will be covering in this particular lecture. So according to this, I will be giving you the explanation of exercise 5.1. So let us move with question number first of exercise 5.1.
1. So students, let's begin with question number first of exercise 5.1 and it is using constants, variables and mathematical operation. कॉन्स्टेंट्स को यूज में लेकर, वेरिएबल्स को यूज में लेकर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज में लेकर. मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये चारों साइंस मिलाकर कहलाती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज में लेकर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं यहाँ पर. उन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रेम करनी है. सो सी हाउ टू फ्रेम इट. फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ P एंड Q. आप जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर गिवन है इसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए. हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद में आप इजीली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फ्रेम कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ P एंड Q. P और Q का सम, और सम आपको पता है क्या होता है, एडिशन. तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें P और Q को ऐड करना है. तो यहाँ पर सिंपली इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी P प्लस Q. तो यही इसका आंसर है. अब आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो गया, P प्लस Q, और अगर इसको स्टेटमेंट में लिखते तो क्या हो जाता, द सम ऑफ P एंड Q. नाउ लेट अस मूव ऑन टू B पार्ट. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q added to the product of 2 and x. Product means multiplication. Product का मतलब होता है multiplication. So P और Q के multiplication को ऐड किया गया है 2 और x के multiplication में, product में. तो क्या गिवन है यहाँ पर, P प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q. तो P और Q का हमने प्रोडक्ट किया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया. एडेड टू का मतलब होता है एडिशन. प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x, तो 2 और x का प्रोडक्ट. सो यहाँ पर 2 और x के बीच में भी मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है. अब ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, P और Q मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे PQ. ओके, एडिशन का साइन एज इट इज रहेगा बीच में. 2 और x मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 2x. सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट B. अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x. नेक्स्ट, 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. x और y के प्रोडक्ट में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया है. आप स्मॉलर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स के फ्रॉम वर्ड कभी भी अगर आता है सब्ट्रैक्शन वाली स्टेटमेंट में, तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है वो हम पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाली जो वैल्यू है वो हम बाद में लिखते हैं. तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. तो पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. और अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इंटू वाई को पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद में है. इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है 10 को, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस और यहाँ आ जाएगा 10. सो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मीन्स xy माइनस 10. अब देखिए 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 10 सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. नेक्स्ट, 1/2 मीन्स 1/2 ऑफ x. 1/2 ऑफ x. बॉड मास पढ़ा है आपने, तो बॉड मास में आपको पता है BODMAS. तो B के बाद में जो O आता है उसका क्या मतलब होता है, ऑफ. और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर वही आपको ध्यान रखना है, इस ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. 1/2 ऑफ x एडेड टू ट्वाइस द नंबर y. 1/2 ऑफ x को प्लस किया गया है ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स द नंबर y. तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसकी स्टेटमेंट, क्या है यहाँ पर, हाफ. पहले हमने लिखा हाफ ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. हाफ ऑफ x, तो हाफ ऑफ x ये हो गया हमारा. एडेड टू, तो हम लिखेंगे प्लस. ट्वाइस जैसा मैंने बताया 2 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. सो 2 टाइम्स द नंबर y. तो यहाँ आ जाएगा y, 2 इंटू y. सॉल्व होके ये क्या हो जाएगा, जब आप 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
x अपॉन 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा x, ये जो x है 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही नंबर आता है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा x, डिनोमिनेटर में 2, एडेड 2 प्लस ट्वाइस द नंबर y, ट्वाइस द नंबर y मीन्स 2y, तो इसका आंसर हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 2y। लेट अस मूव ऑन टू ई पार्ट। अ नंबर y इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एक नंबर y है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा है एंड देन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट आया उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। अ नंबर y इज मल्टीप्लाइड बाय 2, y को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बिगनिंग क्या होगी, y इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, y को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट हमने करा है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो -1, और ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 2 को जब y से मल्टीप्लाई करा तो 2y - 1, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर मीन्स पावर 2, so the sum of square of y and product of x and y, so product of x and y and square of x का sum, ओके, ये है क्वेश्चन में। सो पहले देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x, सो स्क्वायर ऑफ x क्या हो जाएगा, x की पावर 2, ओके, सम, इसका सम तो बीच में आएगा प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का प्रोडक्ट, सो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय y। अब आप देखिए द सम ऑफ, तो सम ऑफ की जगह आ गया एडिशन का साइन बीच में, स्क्वायर ऑफ x तो x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, सो x और y का प्रोडक्ट, सो सॉल्व होके ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस xy, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट f। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, x और y के सम को उसके प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब वापस देखेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम वर्ड आ रहा है, सब्ट्रैक्शन है, और फ्रॉम के बाद में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, x एंड y का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, आपको प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है सम को, किसका प्रोडक्ट, किसका सम, x एंड y का ही प्रोडक्ट और x एंड y का ही सम, द सम ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा x इंटू y, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ x एंड y, तो x एंड y का सम हो जाएगा x प्लस y, ओके। अब प्रोडक्ट करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डिनोट करेंगे इसको x y माइनस, ये ब्रैकेट में ही रहेगा x प्लस y, यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट x प्लस y, ओके। द सम ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सो दिस विल बी द आंसर। h पार्ट, 3 मोर देन y एडेड टू 2 टाइम्स y, अगर हम y को 2 टाइम्स y में ऐड करते हैं उससे 3 ज़्यादा, ये हमें डिनोट करना है। सो 3 मोर देन, सो मोर देन का मतलब होता है प्लस, ओके, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे 3 प्लस मोर देन y एडेड टू, y को ऐड किया है, y एडेड टू किस में, 2 टाइम्स y को 2 टाइम्स y में ऐड करा है, तो 2 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई y, 2 टाइम्स मीन्स 2 इंटू, और ट्वाइस मीन्स भी 2 इंटू, तो ये दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, अगर ट्वाइस लिखा आ रहा है तो उसका मतलब भी 2 इंटू होता है, और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी 2 इंटू होता है। सो यहाँ पर 2 इंटू वाई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा प्लस y प्लस 2 टाइम्स y, इसको हम लिखते हैं 2y, सो 3 मोर देन y एडेड टू 2 टाइम्स y, so this will be the algebraic expression for part H. So like this we can find the algebraic expressions of any given statement. I hope question number first is clear, students.
Now our question number 2 is write the terms and factors for each term of following algebraic expressions. कुछ algebraic expressions यहाँ पर given है इस particular question में और हमें इन algebraic expressions की terms और factors find out करने हैं. Lecture की beginning में मैंने आपको explain करा है कैसे terms और factors find out करते हैं. So it is having part from A to part I. But A, B, C part is quite simple, so I am not explaining that. You can do it yourself. I am beginning from part D. So pay attention. D part is 3 upon 8 xy plus 1 upon 4y plus 3 upon 2 x. अभी अगर पहले हमें इसकी टर्म्स बतानी है, अगर हम इसकी टर्म्स बताएंगे तो टर्म्स बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप सेपरेट कर देंगे. इसके अंदर 3 टर्म्स हैं. सो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3 अपॉन 8 एक्स वाई, सेकेंड टर्म हो जाएगी 1 अपॉन 4 वाई और थर्ड टर्म हो जाएगी 3 अपॉन 2 एक्स. टर्म्स को हम सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा प्लेस कर देंगे. और जैसा कि मैंने बताया था, अगर टर्म्स के साथ में पॉजिटिव साइन है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पुट द पॉजिटिव साइन. हम पॉजिटिव साइन के बिना भी टर्म्स को मेंशन कर सकते हैं. और अब अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप टर्म वाइज फैक्टर निकालेंगे. हर टर्म का फैक्टर निकलेगा. तो यहाँ फर्स्ट टर्म का फैक्टर हो जाएगा 3 अपॉन 8 कॉमा एक्स कॉमा वाई. यहाँ पर पर्टिकुलर एक टर्म का फैक्टर निकालने के लिए उसके बीच में कॉमास प्लेस होंगे. 3 अपॉन 8 कॉमा एक्स कॉमा वाई. इसी तरीके से सेकेंड टर्म का फैक्टर निकलेगा 1 अपॉन 4 कॉमा वाई और थर्ड टर्म का फैक्टर निकलेगा 3 अपॉन 2 कॉमा एक्स. सो इस तरीके से हम टर्म सेपरेट कर सकते हैं और फैक्टर्स सेपरेट कर सकते हैं. सी पे अटेंशन ऑन पार्ट ई. यहाँ पर जो टर्म्स हैं, टर्म्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर सेपरेट कर दीजिए आप. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 8.1 एक्स स्क्वायर कॉमा सेकेंड टर्म है यहाँ पर 0.7 वाई क्यूब एक्स. तो ये हो गई 2 टर्म्स. अब इसका फैक्टर निकालेंगे. तो फर्स्ट टर्म का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का फैक्टर क्या निकलेगा, 8.1 कॉमा एक्स. 2 टाइम्स एक्स आ रहा है, एक्स की पावर 2, तो हम इसको पूरा ओपन करके लिखेंगे. सेकेंड टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 0.7 कॉमा वाई क्यूब, वाई की पावर 3, तो 3 को हम रीड करते हैं क्यूब, वाई क्यूब, तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे. वाई कॉमा वाई and x is coming only 1 time, so x. So these are the factors of both the terms in part E. Let us move on to part F. यहाँ पर अगर हम टर्म निकालेंगे पहले तो टर्म हो जाएगी 100m, 1000 n. So these are the 2 terms. और फैक्टर्स निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 100, m और सेकेंड टर्म के फैक्टर हो जाएंगे 1000, n. ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट जी. पार्ट जी के अंदर आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर माइनस का साइन है. तो जब हम इसकी टर्म्स निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी -8x क्यूब वाई जेड. दिस इज आवर फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म इज -7x वाई क्यूब जेड. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है, दैट्स वाई आई एम पुटिंग माइनस साइन विद द टर्म. और थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी -5x वाई जेड क्यूब. ओके, अब जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे. फर्स्ट टर्म के फैक्टर हो जाएंगे -8 कॉमा एक्स क्यूब, दैट मीन्स x विल कम 3 टाइम्स, x कॉमा x, y ओनली 1 टाइम एंड z 1 टाइम. सेकेंड टर्म के फैक्टर्स हो जाएंगे -7 कॉमा x. नाउ y क्यूब, सो y विल कम 3 टाइम्स, y कॉमा y एंड z विल कम ओनली 1 टाइम. थर्ड टर्म के फैक्टर्स हो जाएंगे -5 1 टाइम, x 1 टाइम, y 1 टाइम and now z is having power 3, so z will come 3 times, z comma z. So you have to see the power of the variable and according to that you have to open it and then write the factors. Next, -5xy square. Now this algebraic expression is having only one term, तो यहाँ पर हम term भी
एक ही लिखेंगे, यही आ जाएगी एज इट इज, और इसके साथ में माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन पुट करेंगे। और जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स आ जाएंगे -5 कॉमा x कॉमा y कॉमा y, because y is having power 2, so y will come 2 times. Then I part, here the terms will be 4 comma -5x, the next will be comma 1 upon 2x square, and the next will be -1 upon 3x cube. So these will be the 4 terms of this algebraic expression. I have separated the term by putting comma in between. Now if I have to find the factors, so factors of first term will be only 4, then the second term will be -5 comma x, factor of third term will be 1 upon 2 comma x square, no, so it will come 2 times x comma x, and then the last one is -1 upon 3 x cube, so x cube means x will come 3 times. So this is how we can find the terms and the factors of any algebraic expression. I hope all these parts are clear, and now you can solve easily part A, B and C, which I have not given here, because I know that is very simple, so you can do it yourself. Yes students, let us move on with question number 3rd now. Here we have to classify the algebraic expression as monomial, binomial and trinomial. I told you in the beginning to remember the types of algebraic expression. So in this question some algebraic expressions are given, and we have to see that how many terms are there in each algebraic expression. So according to number of terms we will classify it as monomial, binomial or trinomial. So see, first part, 1.5x square plus 8y square plus 6.2z square. You can able to see students that in this part total 3 terms are there. यहाँ पर 3 terms हैं. So अगर 1 term होती है तो 1 term means monomial, 2 terms means binomial and 3 terms means trinomial. So in this A part 3 terms are there, so this is trinomial. तो इस algebraic expression का नेम है trinomial. B पार्ट के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही टर्म है, इसको पूरा एक टर्म कहा जाता है, इसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आ रहा है. मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई साइन नहीं आ रहा है. तो जब किसी टर्म के बीच में, लाइक यहाँ पर देखिए आप तीनों टर्म्स हैं, तो 3 टर्म के बीच में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है यहाँ पर. तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आने के बाद ही हम टर्म्स को डिवाइड कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं. यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज ओनली सिंगल टर्म, ये 1 टर्म है. सो 1 टर्म को हम बोलेंगे मोनोमियल, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल. नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और 2 टर्म्स हैं. सो इफ 2 टर्म्स आर देयर, सो इट इज बाइनोमियल, तो इसका नाम हो जाएगा binomial. So you have to mention it as binomial. Next D part. In D part you can see that 3 terms are there and it is separated by 2 mathematical operation. इसके बीच में 2 mathematical operation आ रहे हैं, तो ये 3 terms हैं, that's why इसका नाम हो जाएगा trinomial. Next, इट इज ओनली द सिंगल टर्म, कॉन्स्टेंट वैल्यू. ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नंबर है. सो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल. ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है, सो इट इज द मोनोमियल. नेक्स्ट, एफ पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं. सो 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल, सो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल. एंड देन इन जी पार्ट, in G part again you can see that 3 terms are there. 3 terms हैं और 2 mathematical operation है, so it is again 3 terms हैं, तो इसका नाम हो जाएगा trinomial. Next part, it is having 2 terms. 2 terms हैं इसके अंदर, एक p square और दूसरा pq, so it will be binomial. 2 terms हैं तो 2 terms कहलाएगी binomial. Then last part, it is having only 1 term. ये सिर्फ एक ही टर्म काउंट होगी, इसके आगे दूसरी टर्म नहीं आ रही है. तो अगर एक टर्म है तो इट इज मोनोमियल, तो यहाँ पर आप लिख देंगे
monomial. Now I hope it is clear that what is binomial, monomial and trinomial. So these are the types of algebraic expression. एक word और आता है students, that is called as polynomial. So basically these all are polynomial only. ये सारे algebraic expressions polynomial के ही family members हैं, like binomial, trinomial, monomial, these all are the family members of polynomial. तो हम इसको separately अगर आप देखेंगे तो हम इसको polynomial भी कह सकते हैं. ओके, वो algebraic expression जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ पर ट्राइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल को हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. अदर लैंग्वेज में हम इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Yes students, now the next question is question number 4, where we have to identify that which are the like terms and which are not the like terms. तो कुछ parts given है, algebraic expressions given है और हमें बताना है इनमें से like terms कौन सी हैं. तो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था like terms वो होती हैं जिनके variables exactly same होते हैं. तो अगर same variable that means like terms और different variables that means unlike terms. तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम वेरिएबल पर फोकस करेंगे, हम नंबर पे फोकस नहीं करेंगे. तो आप देख सकते हो p स्क्वायर q और यहाँ पे p q स्क्वायर, यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पर q की पावर 2 है, यहाँ p सिंगल है, यहाँ पे q सिंगल है. सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, वेरिएबल सेम नहीं है. तो अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ये कहलाएगी अनलाइक टर्म्स. तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट में आप देखेंगे अगेन हम वेरिएबल पर फोकस करेंगे, सिर्फ x की पावर 3, y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 3, x की पावर 3, आगे पीछे हो गए हैं बट पावर इक्वल की है. x की पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y की पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. सो वेरिएबल्स आर सेम, सो इट विल बी लाइक टर्म्स. इसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट, x की पावर 1, कोई पावर नहीं मतलब 1, y की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 2, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है. सो इट विल बी अनलाइक टर्म्स. सो वी विल बी राइटिंग अनलाइक टर्म्स हेयर. ओके, नेक्स्ट 5/7 a स्क्वायर b c, a की पावर 2, b की पावर 1, c की पावर 1, a की पावर 2, c की पावर 1, b की पावर 1. ओके, वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं बट उसकी पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए तो वो लाइक ही कहलाएगी. तो यहाँ पर a 2 है दोनों जगह, b 1 है और c भी 1 है. तो वेरिएबल्स इक्वल है, यहाँ पर वेरिएबल इक्वल है तो दिस विल बी द लाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट 2 and -1 दोनों ही कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स हैं. तो इट विल ऑल्सो बी लाइक टर्म्स. अगर दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको भी हम लाइक टर्म्स कहेंगे. नेक्स्ट 5xyz, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1. तो इक्वल पावर्स है दोनों टर्म्स के अंदर, सो इट विल ऑल्सो बी लाइक टर्म्स. ओके, सो लाइक दिस वी कैन सेपरेट द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. Clear? Yes students, let us move on with question number 5th, and in question number 5th some algebraic expressions are there and we have to find the numerical coefficient of each term in this algebraic expression. जो भी algebraic expression है हमें उसकी terms को separate करना है और फिर उसका numerical coefficient बताना है. numerical मतलब number. Okay, so see in a part ओनली 1 टर्म इज देयर. ए पार्ट में सिर्फ एक टर्म है -3x². इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? NC मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस नंबर. हमें वेरिएबल नहीं लिखना है, हमें सिर्फ नंबर लिखना है. और कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ नंबर पूछा जा रहा है तो नंबर क्या होगा? -3. तो इसका आंसर हो जाएगा -3. नेक्स्ट बी पार्ट, इसमें 3 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म है x3, सेकेंड टर्म है x² और थर्ड टर्म है x. ओके, पहले हमने टर्म्स को सेपरेट कर दिया. अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, नंबर क्या होगा? तो आप देख सकते हो
तीनों वेरिएबल के साथ में। नंबर कहाँ होते हैं? वेरिएबल के पहले, बिफोर। इसको नंबर मत मानना, पावर्स को आप नंबर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि पावर्स को वो क्या मान लेते हैं? नंबर। ओके, और वो नंबर मान के उसको आंसर में लिख देते हैं, बट नो, पावर्स आर नॉट काउंटेड एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वेरिएबल के पहले होता है, तो यहाँ वेरिएबल के पहले आप देख सकते हो तीनों में कोई नंबर नहीं है। तो अगर वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं होता है तो हम उसको मानते हैं नंबर 1। तो यहाँ पर तीनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 1 1 1 आंसर। यहाँ पर थर्ड वाले में 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है 0.8y स्क्वायर और सेकेंड टर्म है -6.87y। ये 2 टर्म्स हैं। सो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वेरिएबल के पहले क्या है? 0.8। सो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 0.8 और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, साइन के साथ में आएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर नेगेटिव साइन है तो हमें लगाना कंपलसरी है। तो -6.87 इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -6.87 अलॉन्ग विथ माइनस साइन यू हैव टू पुट। नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है 12a स्क्वायर b स्क्वायर और सेकेंड टर्म है -5a स्क्वायर। ओके, तो इसका न्यूमेरिकल, फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा नंबर 12 और सेकेंड टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -5। ओके, सिर्फ नंबर लेना है हमको। नेक्स्ट ई पार्ट, इसके अंदर टर्म्स हो जाएंगी 7x एंड -x²y। ये 2 टर्म्स हो गई इसके अंदर। सो फर्स्ट टर्म के अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा नंबर 7 और सेकेंड टर्म के अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हो इधर x के पहले, तो हम जैसा मैंने बताया 1 लेंगे, बट साइन भी आएगा यहाँ पे तो आ जाएगा -1। नेक्स्ट f पार्ट के अंदर 2 टर्म्स हैं 2x एंड 2y, तो दोनों का ही कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 2 एंड 2। नेक्स्ट g पार्ट, टर्म्स हैं यहाँ पर -7x² एंड +12p², ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पर। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का हो जाएगा -7 और सेकेंड टर्म का हो जाएगा 12। नो नीड टू मेंशन प्लस साइन, सो वहां पे आ जाएगा 12। देन h पार्ट, यहाँ पर 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल है, तो हम 3 टर्म्स लिखेंगे 15xy, देन 13x² एंड देन 12xy²। तीनों टर्म्स हमने मेंशन कर दिए, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? फर्स्ट टर्म का हो जाएगा 15, सेकेंड टर्म का हो जाएगा 13 और थर्ड टर्म का हो जाएगा 12। सो दिस विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ पार्ट h। नाउ पार्ट i, 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, सो ये है बाइनोमियल, सो 2x -3y, दोनों टर्म्स हमने सेपरेट कर दी। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2x का हो जाएगा 2 और -3y का हो जाएगा -3। So like this we can find the numerical coefficient of any given term. Clear students? So let's move on to question number 6 and it is write the coefficient of the following. Again we have to write the coefficient in the following parts. So see how we will be doing xy in 12x²y. पहले तो आप उस टर्म को सर्च कर लीजिए जिसमें xy आ रहा है, हमें xy का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो xy आ रहा है इस टर्म के अंदर, तो हम सबसे पहले अपनी टर्म मेंशन करेंगे। तो जिस टर्म के अंदर xy आ रहा है वो है 12x²y। ओके, अब आप इसके फैक्टर्स लिख दीजिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12, x, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, किसका? कोफिशिएंट ऑफ xy, हमें xy का कोफिशिएंट निकालना है। तो फैक्टर्स में से हम x और y दोनों को डिलीट कर देंगे, जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास में? 12x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, सी नेक्स्ट पार्ट, a in a²b। तो एक आ कहाँ पे रहा है? इस टर्म के अंदर, तो पहले हम टर्म लिखेंगे, हमारी टर्म आ जाएगी a², फिर हम इसका फैक्टर लिखेंगे, तो फैक्टर हो जाएगा a, a। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है?
ए, हमें ए का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक ए को हम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा हमारे पास में, दूसरा ए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। सो एक्स स्क्वायर किस में है, इस टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम वो टर्म सेपरेट करेंगे जिसके अंदर एक्स स्क्वायर है। ओके, उसी टर्म को लेकर और उसी का ही कोफिशिएंट हमको निकालना है, बाकी की टर्म्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को ले लिया हमने, अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, तो दोनों ही x को हम डिलीट कर देंगे। अब अगर दोनों डिलीट कर दिया तो बचा क्या, यस 1, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, नाउ डी पार्ट, वाई स्क्वायर इन -16 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, यहां पर एक ही टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, दिस इज मोनोमियल, तो टर्म हम लिख देंगे यहां पर -16 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यहां पे हमें फैक्टर्स निकालने की नीड ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप यहां से वाई स्क्वायर को डिलीट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर को जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास क्या बच गया, 16 एक्स क्यूब जेड क्यूब, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को डिलीट कर दिया, बाकी की जो रिमेनिंग है वो हो जाएगी हमारी कोफिशिएंट। नेक्स्ट, यहां पर भी सिंगल टर्म है, तो पहले हम टर्म लिखेंगे -5/2 एक्स क्यूब वाई। ओके, अब हमें यहां पे फैक्टर्स भी लिखने होंगे, -5/2 एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई। ओके, वाई एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स, बिकॉज एक्स इज हैविंग पावर 3, एक्स की पावर 3 है, और हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की 2 पावर, सो एक्स की 2 पावर डिलीट होगी, यानी कि 2 एक्स डिलीट हो जाएंगे, तो 2 एक्स अगर डिलीट हो गए तो बच क्या गया, -5/2 एक्स वाई, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अगेन मोनोमियल है यहां पर, तो पहले आप टर्म लिख दोगे -10 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, पहले हमने टर्म लिख दी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर, आप फैक्टर फाइंड आउट कर लिए यहां पर, तो -10 कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक x को डिलीट कर देंगे, एक y को डिलीट कर देंगे, एक z को डिलीट कर देंगे, तो इन तीनों को जब डिलीट कर देंगे तो बच क्या जाएगा हमारे पास में, -10 एक्स जेड, सो दिस विल बी द कोफिशिएंट। नेक्स्ट, 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पर भी एक ही टर्म है, मोनोमियल है, तो पहले हमने टर्म लिख दी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब हमने इसका फैक्टर लिख दिया, तो फैक्टर हो जाएगा 2x, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ 2xy स्क्वायर। ओके, 2xy स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो दैट मीन्स हम डिलीट करेंगे 2 को, हम डिलीट करेंगे एक x को, एंड y स्क्वायर दैट मीन्स y की पावर 2, हम 2y को भी डिलीट कर देंगे। इन सबको हमने डिलीट कर दिया, तो बच क्या गया हमारे पास में, बच गया सिर्फ x, तो यही x हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 3xy इन 15x क्यूब वाई स्क्वायर, 3xy का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, तो टर्म्स यहां पर वापस मोनोमियल, एक ही टर्म है 15x क्यूब वाई स्क्वायर, यहां पे हमें नंबर 15 के भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, हम नंबर 15 को भी फैक्टराइज करेंगे, तो 15 के फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो, 15 को फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 और 3,5, एंड एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं x कॉमा x, और वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 15 को मैंने फैक्टराइज क्यों किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे 3xy का कोफिशिएंट निकालना है, तो अगर मैं 15 को
फैक्टराइज नहीं करती तो मेरे पास में 3 कहाँ से आता, इसी वजह से 15 को फैक्टराइज करके 3 और 5 के अंदर डिवाइड किया है। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ 3xy। तो अब हम डिलीट किसको कर देंगे, 3 को, x को और y को। एक 3 हटा दिया, एक x हटा दिया, एक y हटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 5x की पावर 2, 2 x बच गए हमारे पास में और y। सो 5x² विल बी द आंसर। सो आई होप कोफिशिएंट टॉपिक इज क्लियर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है उसको आप डिलीट कर दीजिए और उसके अलावा जो बाकी की वैल्यूज होंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सो प्लीज try solving this, and if you find problem we will discuss it in live class. So let us move on with question number 7 now. So now question number 7. In question number 7 we have to write 2 algebraic expressions. हमें अपनी खुद की 2 algebraic expression frame करनी है to represent monomial, binomial, trinomial and polynomial, but it should not be binomial or ट्राइनोमियल। तो 1 by 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो आप अपनी खुद की कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेम कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर फ्रेम कर रही हूँ x³ प्लस 2x² प्लस 15, ये होगी ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हो गई यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन फ्रेम कर सकती हूं। अब सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स की मैं यहां पर फ्रेम करती हूं। a³ प्लस a² b प्लस ab² c, ये बना दी मैंने ट्राइनोमियल की सेकेंड एक्सप्रेशन। तो 3 टर्म्स हो गई। इसी तरीके से आप भी अपनी खुद की कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो हैविंग द 3 टर्म्स। उसमें वेरिएबल होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए, बट 3 टर्म्स होनी चाहिए और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट होनी चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि प्लस का ही साइन हो, आप माइनस का साइन भी पुट कर सकते हो। नाउ बाइनोमियल, इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं बाइनोमियल के। तो बाइनोमियल के अंदर मैं ले सकती हूँ, डेसिमल में भी बना सकती हूँ, तो 0.76y³ माइनस 0.87x²y, ये ले ली मैंने बाइनोमियल की टर्म। अब इसी तरीके से एक और टर्म ले रही हूँ मैं बाइनोमियल में, तो फ्रैक्शन के अंदर भी शो कर सकती हूँ, -1/8x³ प्लस 3/7y²। सो दिस इज द बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म हो गई, तो ये मैंने बाइनोमियल का एग्जाम्पल ले लिया। नाउ मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। मोनोमियल में सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो -25x³y²z, ये मैंने एक टर्म ले ली। और दूसरी टर्म मैं मोनोमियल का एग्जाम्पल ले सकती हूँ 5a³bc। तो इस तरीके से मैंने मोनोमियल का एग्जाम्पल ले लिया। ओके, मोनोमियल सिंगल टर्म, ट्राइनोमियल ट्रिपल टर्म, बाइनोमियल डबल टर्म। ओके, 2 टर्म्स। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन इक्वेशन ऑल्सो। नाउ डी पार्ट, पॉलिनोमियल होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सब पॉलिनोमियल ही हैं। इसको भी पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल, इसको भी पॉलिनोमियल। बट हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल के 2 एग्जाम्पल्स लेने हैं, बट नॉट बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बट एक कंडीशन डाल दी है यहाँ पर कि वो जो पॉलिनोमियल है वो ना तो बाइनोमियल होना चाहिए ना ही ट्राइनोमियल होना चाहिए। दैट मीन्स ना तो उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए ना ही उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म्स ले लेते हैं। हम 4 टर्म्स की एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए x² प्लस xy² प्लस xyz² प्लस 44। सो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल।
more than 3 terms, it is not a binomial, it is not a trinomial, but it is a polynomial. मगर ये polynomial है. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे कि a क्यूब b प्लस a स्क्वायर c b प्लस a c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b c. सो ये हो गई वापस यहाँ पर पॉलिनोमियल विच इज नॉट अ बाइनोमियल, नॉट अ trinomial. So like this we can create our own example for any type of algebraic expression. So here we have finished question number 7. Let us move on to the last question of this exercise, that is question number 8. Now the last question is we have to write a pair of a like term and unlike term. हमें एक pair लिखना है जिसपे like terms होनी चाहिए और unlike terms होनी चाहिए. So it is also a very simple question. कोई भी आप टर्म्स ले लीजिए जिसके वेरिएबल सेम होने चाहिए तो वो हो जाएगी लाइक टर्म्स, और कोई भी टर्म ले लीजिए जिसके वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए तो वो हो जाएगी अनलाइक टर्म. जैसे मैं यहाँ पर ले सकती हूँ -2x² y कॉमा -8x² y. तो ये पेयर ऑफ लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके वेरिएबल एग्जैक्टली सेम हैं. या फिर मैं यहाँ पर ले सकती हूँ 59a³ b c, और यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 36ba³ c. ओके, तो आप देख सकते हो पोजीशन चेंज हुई है वेरिएबल की, लेकिन जो पावर्स है वो सेम है. a की पावर 3, a की पावर 3, b की पावर सेम 1 एंड c की पावर भी सेम. सो दीज आर द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स. और इसी तरीके से अगर अनलाइक टर्म्स करते हैं हम, तो अनलाइक टर्म्स के अंदर मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ 36a4b3c, और दूसरा ले सकते हैं यहाँ पर 45a3b4c2. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है. सो इट इज नॉट अ लाइक टर्म, इट इज अनलाइक टर्म. और एक और एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 30x² एंड 42yx. तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है. सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक टर्म्स. सो हेयर I have given you all the questions of exercise 5.1. I have covered so many topics in this particular exercise. Please go through the complete video. Anywhere if you find doubt, confusion, then you can either leave the comment in the comment section below, or you can directly ask your doubt in the live class. Okay, so that's all for today. Now I will meet you back in the next lecture where I will start the new exercise 5.2. Till then, you please complete this work in your notebook and please do take good care of yourself. Thank you so much.